नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से हम सुनेंगे। अ फ्यू excerpts from Uncommon Wisdom, Dukha. The fundamental basics of Buddhism is the fact that we all experience dukha or discontent which we are trying to cure. Dukha can be anything from small irritation all the way up to intensive suffering. This is fundamental what we are trying to remedy. The purpose of Buddhist practice is to comprehend within ourselves the right way to eliminate dukkha. That is really the whole of Buddhism. To learn how to think properly, how to behave properly, and how to speak properly. In order to learn how to think, behave, and speak properly, we must train ourselves. We train ourselves to have a sharp mind to understand the reasons for the things that happen in our lives and thus to get to know ourselves properly. By getting to know ourselves, we get to know other people. By getting to know other people, we learn how to behave rightly towards the all because we know how to behave rightly within ourselves. Mindfulness means keeping the mind in the present moment and thus being aware of oneself all the time. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। A few excerpts from Uncommon Wisdom, Dukha. The fundamental basics of Buddhism is the fact that we all experience Dukha or discontent, which we are all trying to cure. Dukha can be anything from small irritation all the way up to intensive suffering. This is fundamental what we are trying to remedy. The purpose of Buddhist practice is to comprehend within ourselves the right way to eliminate dukkha. This is really the whole Buddhism, to learn how to think properly, how to behave properly, and how to speak properly. In order to learn how to think, behave, and speak properly, we must train ourselves. We train ourselves to have a sharp mind to understand the reasons for the things that happen in our lives and thus to get to know ourselves properly. By getting to know ourselves, we get to know other people. By getting to know other people, we learn how to behave right towards the all because we know how to behave rightly within ourselves. Mindfulness means keeping the mind in the present moment and thus being aware of oneself all the time. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। असमन सामान्य ज्ञान, दुखा से कुछ अंश। बौद्ध धर्म का मूल आधार यह तथ्य है कि हम सभी दुख या असंतोष का अनुभव करते हैं जिसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। दुखा छोटी जलन से लेकर गहन पीड़ा तक कुछ भी हो सकता है। यह मौलिक है जिसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने भीतर दुख को खत्म करने का सही तरीका समझना है। यह वास्तव में संपूर्ण बौद्ध धर्म है। यह सीखना है कि कैसे ठीक से सोचना है, कैसे ठीक से व्यवहार करना है और ठीक से बोलना है। सही तरीके से सोचना, व्यवहार करना और बोलना सीखने के लिए हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा। हम अपने आप को तेज दिमाग रखने, अपने जीवन में घटित होने वाली चीजों के कारणों को समझने और इस प्रकार स्वयं को ठीक से जानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। स्वयं को जानने में हम अन्य लोगों को जान पाते हैं। अन्य लोगों को जानने से हम सीखते हैं कि सबके प्रति सही व्यवहार कैसा करना है, क्योंकि हम अपने अंदर सही व्यवहार करना जानते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में रखना और इस प्रकार हर समय स्वयं के प्रति जागरूक रहना। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा थोड़ा ध्यान से और विस्तार से थोड़ा समझते हैं। असामान्य ज्ञान, दुखा से ये कुछ अंश लिए गए हैं। असामान्य ज्ञान पुस्तक के द्वारा उसमें से कुछ अंश पत्री सर हमें अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही अद्भुत है।
इसे आप जरूर पढ़ें। मैंने इसे पढ़ा और मुझे भी इसमें कई सूक्ष्म सूक्ष्म जानकारी मिली, और ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन के अंदर अगर हम इसको अमल करते हैं और इसको उतारते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखमय और आनंदमय हो जाता है। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार यह तथ्य है कि हम सभी दुख या संतोष का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के अंदर दुख और संतोष का अनुभव करते हैं, जिसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन के अंदर दुख या असंतोष का अनुभव करते हैं और इसे हमें ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दुख और संतोष को हम ठीक करने के लिए ध्यान ही सर्वोत्तम साधन है, जिसके द्वारा हम अपने आप को, इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। दुख हो या असंतोष हो, दुख छोटी जलन से लेकर गहरी पीड़ा तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यह एक मौलिक है जिसे हम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। बौद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने भीतर दुख को खत्म करने का सही तरीका समझना है। यहाँ पर पति समय बता रहे हैं कि बौद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य जो है कि ध्यान करना, उसके द्वारा हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं। यह वास्तव में संपूर्ण बौद्ध धर्म है। यह सीखना है कि कैसे ठीक से सोचना है, ठीक से व्यवहार करना है और ठीक से बोलना है। दोस्तों, ये तीन चीजें जो है, अगर हम अपने जीवन के अंदर इसको अच्छी तरह से अमल करते हैं तो हमारा हर पल आनंदमय और सुखमय है। ये मैं अपने स्वयं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके प्रति थोड़ा जागरूक रहने का प्रयास कर रहा हूँ और करता हूँ, तो मेरा जीवन आनंद से भर जाता है। इस चीज के अनुभव से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही तरीके से सोचना, व्यवहार करना और बोलना सीखने के लिए हमें खुद को प्रशिक्षित करना है होगा। यहाँ वह पति समय बता रहे हैं कि इन चीजों के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा, हमेशा जागरूक रहना होगा और सचेत रहना होगा। तो ये चीजें सारी जो है ध्यान के द्वारा ही संभव है। अपने आप को तेज दिमाग रखने, अपने जीवन में घटित होने वाली चीजों के कारणों को समझने और इस प्रकार स्वयं को ठीक से जानने के लिए प्रशिक्षित हम करते हैं। हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि जो जीवन के अंदर जो घटित होने वाली चीजों के कारणों को, जो भी घटित होता है उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसको समझने के लिए हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम जागरूक में रहते हैं, तो इन चीजों को हम जल्दी से समझ जाते हैं। स्वयं को जानने से हम अन्य लोगों को जान पाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम दूसरे को नहीं समझ सकते। पहले जो है हमें स्वयं को जानना है, अपने आप को आकलन करना है, अपना मूल्यांकन करना है, और फिर हम दूसरे को समझ पाते हैं कि हमारा विचार उनके विचार बराबर है कि नहीं। इन चीजों को तभी हम देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सबके प्रति व्यवहार कैसा करना है, क्योंकि जब हम अपने अंदर सही है व्यवहार करना जानते हैं तो हम सामने वाले के प्रति भी व्यवहार अच्छा करेंगे। ये मैं आपको स्वयं अनुभव के साथ बता रहा हूँ। जब हम अपने प्रति सही व्यवहार करेंगे, तन से, मन से और आत्मा से अपने प्रति सही व्यवहार करेंगे, तो सामने वाले के साथ भी हम सही व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सही व्यवहार कैसे करना है। यहाँ पर सर माइंडफुलनेस का अर्थ जो बता रहे हैं, मन को वर्तमान क्षण में रखना। मन जो हमारा वर्तमान क्षण में रहे, जिस क्षण हम जो कार्य कर रहे हैं, मन हमारा वहां पे टिका होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। और इस प्रकार हम स्वयं के प्रति जागरूक रहना, हम हमेशा हर क्षण जागरूक रहे, हमारी सोच और बोल और सामने व्यवहार जो है उसके प्रति जागरूक रहे। तो इन चीजों को हम अब ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय रहेगा। ये मैं आपको स्वयं अनुभव के साथ बता रहा हूँ। पत्री सर के साथ रहते मैंने भी इन चीजों को बहुत ध्यान से सुना और सीखा, और आज जो मैं उसको अमल कर रहा हूँ, मेरा जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों, आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें और शाकाहार बने। और इस अध्याय को, जो तीन चीजें पत्री सर ने जो बताई हैं, अगर आप इन तीन चीजों को जीवन के अंदर अगर आप
ध्यान से अगर अमल करते हैं तो देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।